Hi, I'm Madhur Bharatiya. I'm a lawyer and researcher at Quill Foundation, and I will be giving a brief introduction about the Innocence Network. Innocence Network is an all India collective of individuals and organizations working on the issue of wrongful and malicious prosecution of individuals under charges of terrorism. The network is facilitated by exonerees themselves, members of the bar, as well as civil liberties groups. Formed in 2016, the network seeks reform at the criminal justice level and campaigns to prevent the practice of unjust incarceration. Individuals who have played a significant role in the campaign are exonerees themselves. One of these people is Mohammad Zahiruddin, who was an accused in the Rajdhani train serial blast case of 1993 and who was acquitted after 23 years. A petition in the Delhi High Court has been filed seeking compensation for wrongful incarceration of his brother Nisaruddin Ahmed, who was an accused in the same case and who was acquitted by the Supreme Court after 23 years of incarceration. In the past few years, the network has facilitated people's tribunals in an attempt to document the journeys of innocence. The network has also facilitated filing of petitions such as the one in the case of Nisaruddin Ahmed. Wahid Sheikh, who was the only accused to be acquitted in the case which has now come to be known as the 7/11 blast case, has played a leading role in the campaign against wrongful prosecution of Muslims in terror cases in India. A lot has already been documented about the loopholes in the investigation and the evidence that was produced in the court in the 7/11 blast case. The incident pertains to 7 bomb blasts that took place across the city of Mumbai in the compartments of local trains on 11 July 2006. The prosecution alleged that the blasts were the result of a well-planned conspiracy, and soon after the investigation into the case had started, the police claimed that they have cracked the case based on scientific evidence that they alleged to have gathered. The trial, which spanned over a period of almost 9 years, led to the conviction of 12 out of the 13 people accused in the case. The judgment, which was delivered by the Special Makoka Court on 30th September 2015, pronounced death sentence to 5 people and awarded life imprisonment to 7. The documentation on the case reveals at least 2 specific allegations made by the accused against the investigating agency, that is ATS Maharashtra, regarding the adoption of certain unconstitutional methods during the investigation. For instance, some of the accused alleged having undergone narco-analysis, which in 2010 has been held to be violative of Article 20, Clause 3 of the Constitution, which gives a person protection from making any self-incriminating statements. Even though the result of the test was not produced before the court, the very allegation of being subjected to an unconstitutional practice was left out from consideration by the court in its judgment. Similarly, the other allegation pertains to the accused being subjected to custodial torture and being made to sign blank documents, an allegation which is commonly found in cases where a law making police confession an admissible piece of evidence is invoked, which in this case was Maharashtra Control of Organized Crimes Act, also known as Makoka. It is to be noted that not only this allegation was not dealt with by the trial court in its judgment, but was something which was ignored from the very first instance of production before the magistrate. The prosecution case is largely based on confessional statements made by the accused, which were retracted later on. The details of torture that these individuals were subjected to have been well chronicled by advocate Wahid Sheikh in his book Beguna Kaidi, and also by one of the lawyers who was appearing in this case and who was shot in his office during the trial, that is late advocate Shahid Azmi. The court in this case observed that custodial torture was a mere allegation since it was not proved.
This kind of an observation indicates that torture is not treated as an offense in itself, requiring an independent investigation. It is important to remember that proof of torture is something which is difficult for an accused in custody to submit, since their circumstances might not necessarily enable gathering such evidence. एंटी टेररिज्म लॉ का बहुत पुराना इतिहास भारत में पाया जाता है। सभी देशों में एंटी टेररिज्म लॉ बने हैं और राजकीय नेतृत्व ने वहाँ की आवाज़ दबाने की कोशिश हमेशा ही की है। हम देखते हैं जब ह्यूमन राइट्स के पर्सपेक्टिव से तो ये दिखता है कि फेयर ट्रायल, जीवन जीने का अधिकार या मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जिंदा रहने का अधिकार, स्वातंत्र, समता, इसको डिनाई किया जाता है जब एंटी टेररिस्ट लॉ हम देखते हैं। तो टेररिज्म रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो नहीं रहना चाहिए। टेररिज्म ये गलत है। टेररिस्ट क्यों पैदा होते हैं इसके ऊपर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। लेकिन एंटी टेररिज्म जो कानून बने हैं वो हमेशा ही लोकशाही की भावना को दबाने का, नागरिकों की भावनाओं को, सवालों को दबाने का काम करते हैं, ऐसे हमें दिखता है। लोकतंत्र चाहिए कि इसके संबंध में हमें कन्फ्यूजन ही सिर्फ क्रिएट करना है, ये भी एक सवाल इसमें से पैदा होता है ऐसे मुझे लगता है। राज्य व्यवस्था, लोकतंत्र, विशेष कानून, इन सभी की प्रक्रिया अगर हम देखें तो शासन को, सरकार को या सरकारी यंत्रणाओं को राक्षसी स्वरूप धारण करने की अनुमति शायद हम कानून बना के देते हैं और वो बहुत बुरी प्रोसेस तैयार करता है। इन राक्षसी कानूनों का अस्तित्व मूलभूत हकों का उल्लंघन करता है, ये हमें समझना होगा। टाडा और पोटा ये कानून जो है उसके पहले भी मीसा नाम का कानून था जो इमरजेंसी के वक्त तैयार हुआ था और इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को विरोध करने वालों को उसमें अरेस्ट होती थी। उसके बाद भी इस कानून का इस्तेमाल होता रहा, लेकिन बाद में वो कैंसिल किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि राक्षसी जो कानून है, टेरराइज करने वाले जो कानून है, उनका स्वरूप बदलते रहा है, नाम बदलते रहा है, लेकिन वो नए रूप धारण करके बार बार आते रहे हैं। जब टाडा या पोटा जैसे कानून पॉलिटिकल अपोनेंट्स को निष्प्रभ करने की कोशिश कर रहे थे तो उनका भी काफ़ी विरोध हो रहा था। नागरिकों की आवाज़ दबाने की ये कोशिश जो है वो पॉलिटिकल विल के तहत हो रही थी। पूरी सिस्टम यानी पुलिस, न्याय व्यवस्था, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है या न्याय व्यवस्था ने किस तरह से सोचना है, इसकी भी डायरेक्शन फिक्स करने वाले प्रोविजन इस कानून में होते थे। और नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल को सबसाइड करके ये एंटी टेररिज्म लॉज जो है वो अस्तित्व में आने लगे, जो भारत के पूरे लोकतंत्र को एक बहुत बड़ा चैलेंज है ऐसे मुझे लगता है। एक बात हम सभी ने सोचनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है, क्या हमें टेररिस्ट चाहिए? इसका जवाब हमें टेररिस्ट नहीं चाहिए ऐसा ही है। कोई टेररिस्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। किसी ने टेररिज्म का फैलाव करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। आतंकवाद, दहशतवाद ये बहुत बुरी बातें हैं जो समाज को कीड़ लगाती है, वो नागरिक होने की सब संभावनाएं खत्म कर देती हैं। इसीलिए कोई आतंकवादी ना बने, कोई टेररिस्ट ना बने और कोई हिंसा का आधार लेके कोई क्रांति करने की भी कोशिश न करे। यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में जरूरी है। लेकिन फिर कोई अगर टेररिस्ट है तो उसे सज़ा होनी चाहिए क्या? जरूर होनी चाहिए। लेकिन फिर सज़ा कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, या हमने जो कानूनी व्यवस्था निर्माण की है और कानूनी प्रोसेस तैयार की है उसके आधार पर उन्हें सज़ा होगी? इसके भी बारे में हमें तय करते आना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। इसलिए जिसने हिंसा की है, जिसने बुरा बर्ताव किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं फॉलो करता है, ऐसे लोगों को जरूर सजा होनी चाहिए। लेकिन सजा कौन देगा इसका जवाब हमें भारतीय संविधान में मिलता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी फेयर ट्रायल के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हमें किसी आदमी को सज़ा देनी है। एक तरफा पद्धति से अगर कोई किसी को टेररिस्ट करार देता है, आतंकवादी या दहशतवादी बोल देता है, तो वो भी नहीं चलेगा। इसकी भी विचारधारा हमारे दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम एंटी टेररिस्ट लॉ और ह्यूमन राइट्स इसके बारे में सोच सकते हैं।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे मिसा कहते थे, वो कानून जैसे मैंने कहा था कि इमरजेंसी के वक्त लागू किया गया था और उसके बाद भी वो प्रचलित था। उसे विरोध हुआ तो उसके बाद में कुछ गैप हुई, लेकिन सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में, विशेष तौर पर हम देखें तो मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड, इन सभी, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में तो बहुत पहले से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अस्तित्व में है, जो कि राक्षसी तरह का एक कानून है। टाडा आया, पोटा आया, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट DAA करके कानून एक राज्य में बना। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 से भारत में है, ये बहुत दुर्दशा करने वाला कानून, जिसे काफ़ी विरोध हुआ लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा और ये कानून अभी भी रद्द नहीं हुआ है। आसाम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पैदा हुआ, जिससे आसाम के लोगों की भावनाओं को दबाया जा सके। इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट बनाया गया। इन सभी कानून का अगर हम एक दूसरे के साथ संबंध है ऐसा देख पाते हैं, तो एक कानून खारिज करने के बाद दूसरा कानून उसी तरह के कपड़े पहन के, अलग नाम धारण करके हमारे सामने अवतीर्ण हुआ है, ऐसे हमें दिखता है। राष्ट्रीय एकात्मता को खतरा है, सुरक्षा में धोखा पैदा हुआ है, इस तरह के कारण आगे करके बहुत बार लोगों को हिरासत में लिया जाता है। जब राष्ट्रीय एकात्मता का खतरा है, देश को धोखा है, या देश में बहुत बड़ी अमानुषता पैदा करने वाले कुछ लोग पैदा हुए हैं, इस तरह का मत प्रदर्शन सरकार द्वारा और सरकारी एजेंसियों द्वारा फैलाया जाता है, उस वक्त एक जस्टिफिकेशन भी समाज में पैदा होता है कि क्योंकि ये लोग, क्योंकि ये संगठन, क्योंकि ये लोगों का समूह जो राष्ट्रीय एकात्मता को खतरा है, उनको अगर अरेस्ट किया गया है, उनको अगर पकड़ा गया है, उनको अगर मार भी दिया गया है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो देश के सुरक्षा के लिए जरूरी था। इस तरह का जस्टिफिकेशन समाज में एस्टेब्लिश हो जाता है और मुझे लगता है कि इसका बहुत मिसयूज पावर अथॉरिटी में रहने वाली यंत्रणाएं करती है बहुत बार, ऐसे हमें दिखता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को लेजिटिमाइज करने का जो एक प्रोसेस है, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है, ऐसे मुझे लगता है। अभी आज ही जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, हम देख पाते हैं कि विकास दुबे के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, उसके वजह से शायद सरकार में जो सत्ता में पक्ष है उसे धोखा उत्पन्न हो सकता था, तो विकास दुबे को मारना जरूरी था। विकास दुबे जो है उसका उपयोग इस्तेमाल करना खत्म हो गया था। विकास दुबे का अब कुछ भी उपयोग या जीने का प्रयोजन नहीं बचा था और इसलिए उसे एनकाउंटर में मार दिया गया है। इस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है वो अलग अलग कारणों के वजह से होते रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, एनकाउंटर है, वो गलत है। किसी भी जस्टिफिकेशन के आधार पर जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं होनी चाहिए। इस तरह से एनकाउंटर का विरोध करने वाला समाज विकसित हो सकता है, डेवलप्ड पर्सपेक्टिव होने वाला हो सकता है। ये बात समझने की जरूरत है, ऐसे मुझे लगता है। जिंदा इंसान गायब हो जाना, टॉर्चर, रेप, पुलिस और आर्मी के द्वारा अत्याचार, इन सभी को जायज करने की एक प्रक्रिया इस तरह के एंटी टेररिज्म लॉ ने की है। सैन्य को, पुलिस को अवास्तव अनकंट्रोल्ड पावर्स देके हमने उनमें से ही कुछ भस्मासुर और राक्षस तैयार करने की जो प्रोसेस शुरू की है, उसके बारे में भी गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। टाडा जो 1985 में आया और 1995 तक चला, उस वक्त तक बहुत तहस महस इस कानून के वजह से हुआ है। समाज में एक असंतोष पैदा हुआ है। कुछ धर्म के, विशिष्ट जाति के लोगों को टारगेट करने वाले इन सभी कानूनों ने भारतीय राष्ट्रीय एकात्मता को तहस नहस कर दिया, ऐसे मुझे लगता है। एक्सटॉर्शन और टॉर्चर को इस कानून ने और ज़्यादा मजबूत बना दिया। बहुत बार हम देखते हैं कि पुलिस अच्छी तरह से छानबीन करने में नाकामयाब होते हैं और वो टॉर्चर का, हिंसा का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। उन सभी पुलिसी प्रवृत्तियों को जो हिंसा से बयानबाजी लेने की कोशिश करते हैं, उनको मजबूत करने का काम इन कानूनों ने किया है, ऐसे मुझे लगता है।
टाडा को काफ़ी विरोध हुआ और उसे निकाला गया। लेकिन कुछ ही सालों में 2002 में पोटा नाम का प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट नाम का कानून लाया गया। पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिया है वो कानूनी तौर पर जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक उसे मान्यता नहीं मिलती और कोर्ट में एविडेंशरी वैल्यू उसकी प्रूव होती है, उसी के बाद उसका कौन सा पोर्शन एक्सेप्ट करना है ये न्यायालय निश्चित करता है। लेकिन टाडा पोटा या उसके जैसे जो कानून है उसके ऊपर बेसिक ऑब्जेक्शन ये रहा है, सभी जो कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं उनका, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं इन सभी लोगों का, कि पुलिस के सामने दिया गया स्टेटमेंट जो है उसे भी सही है, एक्सेप्टेबल है, इस तरह से ही माना जाता है और उसका इस्तेमाल जिसने स्टेटमेंट दिया है उसके खिलाफ प्रूफ या एविडेंस करके किया जाता है। तो ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के खिलाफ है। जो पुलिस को स्टेटमेंट चाहिए वो कभी भी वो ले सकते हैं, वो मार के ले सकते हैं, टॉर्चर करके ले सकते हैं और फिर इसका कोई सबूत बाद में नहीं रहता है कि कोई स्टेटमेंट टॉर्चर करके लिया है, कोई प्रेशर करके लिया है या कोर्शन से लिया है। तो मुझे लगता है कि दबाव विरहित स्टेटमेंट है कि नहीं, इसका एनालिसिस करने की जो जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर है वो इन सभी कानूनों ने डाइल्यूट कर दी है और पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट या बयान दिया जाता है वो सही है और उसका इस्तेमाल एक्यूज के खिलाफ किया जा सकता है एविडेंस करके और उसे सज़ा भी उसके बिना पर दी जा सकती है। ये जो प्रोसेस तैयार किया गया है ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, असंवैधानिक, घटना बाह्य है। ऐसे एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन सभी ने लिया है। दुनिया भर में हम देखेंगे कि पुलिस के सामने दिया हुआ स्टेटमेंट कभी माना नहीं जाता है, जब तक वो कोर्ट में साबित नहीं होता है तब तक वो एविडेंस करके मान्यता उसको मिलती नहीं है। ये जो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है मुझे लगता है कि उसे भी इन कानूनों ने बाजू में रख दिया है और इसलिए इनका स्वरूप और ज़्यादा राक्षसी हुआ है। पुलिस को कोई हम जवाब दे तो कोर्ट में साबित करने के लिए जो नैसर्गिक संरक्षण किसी को मिलता है वो भी संरक्षण इसमें से निकाल दिया गया है। तो ये विक्टिमाइजेशन की एक प्रोसेस भी शुरू करता है। इस तरह का भी आक्षेप इसके ऊपर लिया गया है। जिस तरह से पोटा कानून का इस्तेमाल सही है या गलत है, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसके संदर्भ में लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने के बाद या उस कानून को विरोध करने के बाद एक रिव्यू कमेटी सेटअप की थी। उसी तरह से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के संदर्भ में भी आज बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लोग उठा रहे हैं। इस कानून का गैर इस्तेमाल होता है ये भी आरोप हो रहा है और इसी के दौरान 2005 में हम देखेंगे कि 2005 फरवरी में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की और उन्होंने स्पष्टता से इस संदर्भ में मेंशन किया है कि अरेस्ट कब करना चाहिए, किसी को अरेस्ट करने का कारण क्या होना चाहिए, रीजनेबल प्रूफ हो तब अरेस्ट होनी चाहिए, ऐसे बोला है। लेकिन रीजनेबल प्रूफ है कि नहीं या रीजनेबली अरेस्ट करनी चाहिए कि नहीं, इसके संदर्भ में कौन तय करेगा, ये एक सवाल फिर से उठता है, क्योंकि रीजनेबलनेस कौन डिसाइड करेगा। अगर पुलिस रीजनेबलनेस डिसाइड करेंगी तो फिर उनको फिर से इंडियन पिनल कोड में या कानून के तहत उनको गुड फेथ में प्रोटेक्शन मिल जाता है कि उन्होंने जो कार्रवाई की है वो गुड फेथ में की है, अच्छी तरह से की है, कानूनी नज़रिए को देखकर की है, ऐसे हमने मानना चाहिए। इस तरह का एक प्रिजम्पशन कानून में दिया गया है और उसका भी गैर इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हमने समझना चाहिए। दूसरा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि बेल का ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। अगर किसी आदमी को बेल देने की ज़रूरत है या उसे बेल देने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अवेलेबल रहता है तो उसे बेल देनी चाहिए, उसे डिटेंशन नहीं करना चाहिए। ये कहने के बावजूद भी बहुत बार जो शंकास्पद इस तरह के आरोपी हैं उनको डिटेंशन में लिया जाता है, डिटेंशन में टॉर्चर किया जाता है और उनसे स्टेटमेंट भी लिए जाते हैं। अरेस्ट करते वक्त किसी व्यक्ति की बदनामी नहीं होनी चाहिए, इसके संदर्भ में बहुत स्पष्ट सूचना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दी है।
हम देखते हैं बहुत सारे वारदात हुए, इंसिडेंसेस हुए, घटनाक्रम हम देख पाते हैं कि लोगों को जानबूझकर बदनाम किया जाता है। उनके घर के सामने पुलिस की गाड़ियां लेके जाकर उनको अरेस्ट की जाती है। सिर्फ कोई कविता करता है तो उसे अरेस्ट होता है, सिर्फ कोई लिखता है, कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करता है या कोई कानूनी व्यवस्था की चिकित्सा करता है, सरकारी यंत्रणा किस तरह से चल रही है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इसके संदर्भ में अगर कोई वक्तव्य करता है तो उसको भी अरेस्ट होती है और उन्हें काफ़ी मानहानिकारक बदनामी करके उनका अरेस्ट होता है, जो गलत है, ऐसे एनएचआरसी ने कहा है। लेकिन एनएचआरसी एक बार गाइडलाइंस इशू कर देती है और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस लेता नहीं। मुझे लगता है कि एनएचआरसी ने अपने गाइडलाइंस को खुद एक बार देखना चाहिए और वो गाइडलाइंस फॉलो होती है कि नहीं उसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन या स्टीयरिंग कमेटी अपॉइंट करनी चाहिए। और अगर वो गाइडलाइंस इस्तेमाल करने में पुलिस गलतियां कर रही है तो उनके ऊपर भी सुमोटो कॉग्निजेंस एनएचआरसी ने लेना चाहिए, इसकी ज़रूरत है ऐसे मुझे लगता है। जब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होता है अरेस्ट के बाद या हिरासत में लेने के बाद, उस वक्त एनएचआरसी ने कहा है कि संशयित व्यक्ति को अपने साथ वकील रखने का अधिकार है। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन होता है उस वक्त उन्होंने वकील को बुलाने की परमिशन उन्हें देनी चाहिए। एक्सेस टू लॉयर इज़ वेरी नेसेसरी एज पर द एनएचआरसी गाइडलाइंस। लेकिन अभी तक देखते हैं कि कभी वकीलों को नहीं बुलाया जाता है और वन साइडेड रूप से इन लोगों को हिरासत में रखा जाता है, स्टेटमेंट लिए जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। ये सब गलत है ऐसे मुझे लगता है। एनएचआरसी ने एक बार फिर से सोचना चाहिए कि उनके गाइडलाइंस अगर फॉलो नहीं होते हैं तो गाइडलाइंस मॉनिटरिंग कमेटी या स्टीयरिंग कमेटी उन्होंने करनी चाहिए और जो पुलिस व्यवस्था में लोग हैं इसका गाइडलाइंस का फॉलो अप नहीं करते या गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, उनके ऊपर भी सुमोटो कॉग्निजेंस लेके ऑफेंसेस दर्ज होने की ज़रूरत है। 2004 में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया है। इसके पहले जो टाडा और पोटा थे, इसमें से ही बहुत सारे एलिमेंट इकट्ठा लेकर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। कमेटी एक सेटअप की गई थी टाडा और पोटा के जैसे कानूनों का रिव्यू करने के लिए, और रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट जून 2005 में सबमिट किया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि पोटा जैसा जो कानून है जो 2002 में आया था, उसके वजह से काफ़ी लोगों के ऊपर अन्याय हुए हैं, इलीगल अरेस्ट हुई है, लोगों का कहना न सुनते हुए उन्हें गुनहगार करार दिया गया है और इस तरह के गलत केसेस में जिनको फंसाया गया उनकी संख्या उस वक्त 11,384 बताई गई थी। ये मेरा नहीं, रिव्यू कमेटी का जो कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ और उसमें से ये दिखता है कि पोटा जैसे कानून का जो गैर इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो जो बेगुनाह लोग थे उनको पकड़कर गुनहगार साबित करने के लिए या गुनहगार करार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है ऐसे मुझे लगता है। आईपीसी में बहुत सारे उपलब्ध कानून हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि एक ही कारण था कि पुलिस जो कहेंगे वो सच माना जाए। पुलिस ने जो जवाब लिया है, स्टेटमेंट आरोपी का लिया है, उसे ही सच मानकर न्याय व्यवस्था चले। इस तरह की यंत्रणा या व्यवस्था पैदा करने के लिए इन कानून को निर्माण किया गया और इसलिए जब पोटा के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस तैयार हुए तो एक रिव्यू कमेटी की गई। रिव्यू कमेटी ने भी जब कहा कि ये कानून गलत है, इसका गैर इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो वो कानून हटा के उसके जगह 2004 में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। बहुत बार ये देखा गया है कि एक कानून जाके जब दूसरा कानून लाया गया है तो पहले कानून के बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे वो कायम करके और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए अच्छा रहे, इस तरह से लाया गया है। और पोटा और यूपीए के इस्तेमाल से बहुत गलत चार्जेस दाखिल होने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस शुरू है ऐसे मुझे लगता है। फॉर्मल चार्जेस जब किसी के ऊपर दाखिल होते हैं तो पहले उसको एफआईआर दर्ज किया जाता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद या अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन इन सभी कानूनों की प्रक्रिया हम देखेंगे तो फॉर्मल चार्जेस दर्ज होने के
पहले ही बहुत दिनों तक लोकतंत्र में सवाल खड़े करना ये एक जिम्मेदार नागरिक का काम है और उसी तरह से संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार की कोई प्रक्रिया गलत है, अगर सरकार की निर्णय लेने की प्रोसेस गलत है, पार्टिसिपेटरी नहीं है या वो अनडेमोक्रेटिक है, तो उसके संदर्भ में जरूर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में अनलॉफुल एक्टिविटी का डेफिनेशन ही बहुत वेग दिया गया है और अनलॉफुल क्या है ये तय करने के अगर अधिकार जो अरेस्ट करता है उसे ही दिए जाएंगे तो शायद उसमें से बहुत बड़ा अन्याय और हमने देखा है कि इस तरह के अन्याय इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से काफ़ी बार पैदा हुए हैं। जिस तरह से सीएए का आंदोलन खड़ा हुआ और नागरिकत्व संशोधन विधेयक के बारे में लोगों ने आक्षेप व्यक्त किए, तो उनके ऊपर अनलॉफुल प्रिवेंशन के नाम पर केसेस दर्ज हुई, उनको अरेस्ट हुई और उनकी ये सभी अरेस्ट गलत है। इस तरह से एक एक निर्णय अभी आ रहे हैं, लेकिन अरेस्ट होने के बाद अब तक जो अन्याय अत्याचार उनको सहन करना पड़ा है, उस अमानुषता का हिसाब कौन देगा, ये भी एक सवाल है ऐसे मुझे लगता है। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोले, गवर्नमेंट के प्रक्रिया या पॉलिसी के संदर्भ में कोई विश्लेषण करे, तो वो अनलॉफुल नहीं हो सकता है, वो देश के विरोधी नहीं हो सकता, ये समझने की बात है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि हमने एक गलती कर दी है, शायद राजकीय लोगों ने जो सत्ता में है उन्होंने एक नैरेटिव एस्टेब्लिश किया है कि गवर्नमेंट इज इक्वल टू नेशन। गवर्नमेंट जो है वो अलग है और राष्ट्र जो है वो अलग है, ये बात समझनी चाहिए। गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है तो वो सिर्फ राजकीय पक्ष है, उसकी नीतियाँ और उसकी पॉलिसी के प्रोसेस के बारे में बात करता है, वो देश विरोधी नहीं हो सकता है। तो देश विरोधी कार्रवाई और किसी सरकार विरोधी कार्रवाई, इसमें फ़र्क है और वो समझने के सिवाय अगर कोई प्रक्रिया कानूनी तौर पे होती है तो वो हुकुमशाही की तरफ ले जाती है और इस तरह का अन्याय काफ़ी सारा लोगों को सहन करने पड़ रहा है ऐसे मुझे लगता है। इंटेंशन अगर टेररिज्म को स्ट्राइक करना है तो सरकारी यंत्रणाओं में काफ़ी स्पष्टता होनी चाहिए। फेयर ट्रायल, राइट टू लाइफ और लिबर्टी, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ न करते हुए अगर कोई प्रक्रिया हो सकती है तो वही कानूनी हो सकती है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकती है, बाकी सभी प्रक्रिया ये गैर कानूनी है। संवैधानिक गारंटी हमें लेनी पड़ेगी कि जो संवैधानिक मूलभूत हक हमें दिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होगा और उसके बाद ही सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। अगर गलत किसी ने किया है, हिंसा किसी ने की है, तो उसे सज़ा जरूर होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार के खिलाफ बोलता है वो हिंसक है, इस तरह से उसको टैग करना या उसे अर्बन नक्सल करके टैग करना, ये बहुत गलत है ऐसे मुझे स्पष्ट स्वरूप से लगता है। अगर हम देखेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्शनेबल और अभी ये यूएपीए जो कानून है, इसमें बेल का प्रोविज़न काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। 43D(5) ये जो सेक्शन है, इसमें बेल मिलनी ही नहीं चाहिए, इस तरह का प्रोविज़न किया गया है। और अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो नाम का कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, उसमें जो सेक्शन 49 सब क्लॉज 7 था, उसका ये यूएपीए में 43 सेक्शन एक रिप्लिका है कि बेल ही लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, जमानत होनी ही नहीं चाहिए और जमानत न होते हुए ही उसे गुनहगार करार देके उसके ऊपर अत्याचार किसी के ऊपर किए जा सके, इस तरह का प्रावधान गलत है ऐसे मुझे लगता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जब डिनाय होता है तो फिर नैसर्गिक न्याय तत्व नहीं रहता है और लोगों को अन्याय सहन करने की जबरदस्ती शायद की जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह का कानून का प्रावधान गलत है और इसीलिए यूएपीए कानून के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है बहुत सारे वो वैलिड है। वो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने वाली कानून की व्यवस्था जो है वो हमने नकारनी चाहिए। इंडिया का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो होता है उसमें स्टेट का पुलिस फोर्सेस होता है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज होता है, कुछ 20-24 इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और मिलिट्री भी है। इन सब मिलके इंडिया का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बन जाती है। वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया जैसे देश को उसको सुरक्षित रखने का।
बट पिछले 30-40 सालों में इस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का अंदर बहुत बेईमानी का पक्षपात घुस चुका है। ये पक्षपात मुसलमान के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ट्राइबल्स के खिलाफ है, बाकी जिनके पास भी पावर नहीं उनके खिलाफ है। इसके पीछे एक हिस्टोरिक वजह है। आप 1980 से देखेगा तो कश्मीर में जो हमारा सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा जो लड़ाई चला वो मिलिटेंट्स के खिलाफ जो चला वो मुस्लिम मिलिटेंट्स थे। उस मिलिटेंट्स के आइडियोलॉजी में इस्लामिक रिलीजन भी थे, तो इट बिकेम ए इस्लामिक मिलिटेंसी। वो इस्लामिक मिलिटेंसी हमको जो उसके खिलाफ जो लड़ रहे थे उनका अंदर उस सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काफ़ी लेवल तक एंटी इस्लामिक इस्लामोफोबिक बायसेस घुस चुका है। सिर्फ कश्मीर ही नहीं है, उसका एक दूसरा वजह भी है। वो ये है कि हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पुलिस फोर्सेस और मिलिट्री को फीड करता है, उनका अंदर जो मुसलमानों का और मार्जिनलाइज लोगों का, बाकी दलित ट्राइबल्स वगैरह का जो रिप्रेजेंटेशन बड़ा मिनिस्क्यूल है। आप आज भी देखेंगे तो RNW का सीनियर लेवल में कोई मुस्लिम नहीं है। SPG का अंदर आप देखें तो कोई सरदार नहीं मिलेगा। ये जो बायसेस कुछ कारण से घुसा, बट वो बायसेस आज फुल फ्लेज्ड कैंसर बन चुका है इसका अंदर। उसका वजह से क्या हो रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का अंदर भी इन लोगों का कोई रिस्पेक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस नहीं है। सिमिलरली अमंग दलित्स और ट्राइबल्स का अंदर भी यही हालत है। तो बट अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ढूंढेगी? तो वो दो तरीके के लोगों को ढूंढ के निकालते हैं इन कम्युनिटी से। एक होता है जो चोर चकार होता है, पेटी क्रिमिनल्स होता है, कुछ क्रिमिनल केस में एक्यूज होता है, जिनका पुलिस के साथ वैसे भी इंटरेक्शन होता है और पुलिस से वो डिपेंडेंट है, पुलिस का दया के लिए वो इंतजार में है। दूसरा होता है जो जिनके पास रोजी रोटी का कोई पैसा नहीं है, वो गरीब है, वो गरीबी की वजह से भी इनका इन्फॉर्मेंट्स बन जाते हैं। इन इन्फॉर्मेंट्स को जो मंथली इनकम जो रेवेन्यू होता है वो उनका इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वो अपना फेक बनाना शुरू करता है। जैसे हमारे वाहिद भाई के साथ हुआ था। वाहिद भाई को 2001 में जब सिमी बैन हुआ था, उनका नाम किसने बताया था? एक लोकल मुस्लिम लीडर ने बताया था पुलिस को। पुलिस को नहीं मालूम था कि वाहिद भाई है, और उनके पास थोड़ी एविडेंस है कि, और वाहिद भाई सिमी का मेंबर भी नहीं था। 10 साल के बाद हमको पता चला, 10-12 साल के बाद वो अक्यूट हो गया। तो वाहिद भाई जैसे हजारों लोग, मुसलमान, दलित, ट्राइबल्स और बाकी जो मार्जिनलाइज्ड है, वो हमारे जेलों में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो बायसेस जो घुस चुका है उसको तोड़ने का तरीका हमारे पॉलिटिशियंस सोच नहीं रहे। कैसे तोड़ता है? कैसे अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इस इंटेलिजेंस एजेंसीज को वाइल दे डू टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस एंड वर्क, उनको कैसे अकाउंटेबल रखता है? उसका क्या होता है कि उन देशों में जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आते हैं इंटेलिजेंस के लिए, उस सोर्सेस ऑडिटेबल होते हैं। तो अफगानिस्तान में एक सोर्स ने CIA का फील्ड ऑफिसर को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया CIA हेडक्वार्टर्स में, और उनको मालूम है इस सोर्स का आइडेंटिटी सीक्रेट होगा, बट उनको मालूम है कौन सोर्स ने भेजा इन्फॉर्मेशन, और इस सोर्स 3 बार गलत भेजा, 4 बार गलत भेजा, तो हेडक्वार्टर्स बोलेंगे काट दो उसको, वो हमारे इन्फॉर्मेंट नहीं है, वो हमको बेवकूफ़ बना रहे। तो एक ऑडिट पॉसिबल है, एक्सटर्नल ऑडिट पॉसिबल है इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री के ऊपर। इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेंस का जो पूरा इंडस्ट्री बन चुका है, उनके ऊपर कोई ऑडिट नहीं है बाहर से। उनका जो ऑडिट होता है सिर्फ सिस्टम का अंदर होता है, और इमीडिएट बॉसेस को मालूम होता है कौन सोर्स कौन नहीं। बट जो डिमांड है इन्फॉर्मेशन के लिए, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए ऐसे अनरिलायबल इन्फॉर्मेंट से इन्फॉर्मेशन हर रोज उठ के आ रहे दिल्ली, और वो इन्फॉर्मेशन का ऊपर काफ़ी गलतियाँ, जीर्ण गलतियाँ हो जाती हैं, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसे आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर करके यूज़ भी हो रहे हैं। तो जब टेररिस्ट को नहीं पढ़ पा रहे, 2000 ट्रेन क्लास में असल टेररिस्ट को पढ़ नहीं पा रहे, तो हम वाहिद भाई को पढ़ेंगे। तो ये जो चैलेंज जो बन चुका है
हमारा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अंदर जो एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ट्राइबल जो बायस बन चुका है, उसको तोड़ने के लिए बहुत बड़ा लंबा काम है। नंबर 1, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज को पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, उसका ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। हमारा देश, हमारे जैसे डाइवर्स देश में सबसे एफिशिएंट होता है पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, हर पार्टी के मेंबर्स आने दो, उनको ऑडिट करने दो। उनमें नेगेटिव्स बोल सकती है, बट हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, उससे अच्छा कोई तरीका नहीं। तो पार्लियामेंट्री ऑडिट होना चाहिए इनका ऑपरेशंस का, इनका इन्फॉर्मेंट्स का। दूसरा, ये सोशियो पॉलिटिकल और एजुकेशन लेवल पे हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारा जो पुलिस, स्पेशली स्टेट पुलिस और इंटेलिजेंस में और मार्जिनलाइज लोगों का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। उसके लिए जो एफर्ट चाहिए वो एक और 2 दिन का नहीं है। ये जो है, ये जो स्ट्रगल है, ये एफर्ट एक हमारा कोर्ट्स में होना चाहिए, हमारे पार्लियामेंट में होना चाहिए, स्टेट असेंबली में होना चाहिए और पॉलिटिकल फील्ड में होना चाहिए। और आखिर में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, उसका पूरा जिम्मेवारी बीजेपी के नहीं है। हाँ, बीजेपी का अपना पॉलिटिकल बायसेस है, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट वो इसीलिए मैनिपुलेट कर रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी कांग्रेस ने और बाकी पार्टियों ने इतना मैनिपुलेट कर चुका था कि वो आज भी वो उन्हीं का कॉपी बुक है, उन्हीं का प्ले बुक कॉपी कर। 1987 में जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट असेंबली इलेक्शन फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने मिलकर मैनिपुलेट किया था, इसीलिए मिलिटेंसी शुरू हुआ उधर। बीजेपी का कोई रोल नहीं था, उसका वजह से हज़ारों लोग मर चुका है और हज़ारों इनोसेंट्स जेल में पड़ा हुआ है। तो हमको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा, जो चैलेंज हमारे सामने है उसको एकेडमिकली होलिस्टिकली देखना पड़ेगा और हमको एडमिट करना पड़ेगा इस चैलेंज का पीछे, इस आज जिस हालात में हम हैं उसका पीछे 30-40 साल का हमारा डेमोक्रेटिक गलतियाँ हैं और हम भी इस गलती का कारण है। हमने भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। हम अपना अपार्टमेंट्स और अपना गाड़ी खरीदने में बिजी थे। हमको एक नया पॉलिटिक्स खोलना पड़ेगा, जिस पॉलिटिक्स में सबको विश्वास हो। हमको इस एफर्ट जो बायसेस निकालने का, उसको फाइट करने का, इस एफर्ट में हमारे बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। हमारे बच्चों को इंस्टीट्यूशंस में पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। इनका जो सोल्यूशन न्यू दिल्ली से नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा आप और हमारे बीच में से, जब हम लोग इसको होलिस्टिकली देखें और हमारे बच्चों को एजुकेशन दें, हमारे यंगस्टर्स को इनकरेज करें इंस्टीट्यूशंस में एनरोल करने के लिए, नौकरी लेने के लिए। और जब हम इसको एक मेन स्ट्रीम मुद्दा बनाए, मैं समझ सकती हूँ वाहिद भाई और बाकी दोस्त, आप लोग जो भी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इसका अंत आज और कल नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लंबा स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल में आपको सबके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, जो भी बाकी मार्जिनलिस्ट, और हाथ मिलके एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा और ये सालों का स्ट्रगल होगा। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। 7/11 ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट 2006 के वेबिनार के लिए आज हम जमा हुए हैं। आप जानते हैं 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम ब्लास्ट हुए थे, जिसके बाद ATS मुंबई ने 13 मुस्लिम नौजवानों को अरेस्ट किया था। उनका केस बम्बई की मौका अदालत में 9 साल चला और उसके बाद 12 लोगों को सज़ा दी गई। 2015 में सज़ा लगने के बाद ये 12 लोग महाराष्ट्र की मुख्तलिफ़ जेलों में कैद है, जो रोज़ाना इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा और वो हाई कोर्ट से बरी होंगे। आज के दिन पूरे 14 साल उनको कैद को हो चुके हैं। एक ऐसा शख्स जो बेगुनाह हो और किसी झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो और जिसको सज़ा लग चुकी हो,
वो किस तरह से जेल काटता है और किस तरह से तकलीफ़ से गुज़रता है, हम और आप इसका अंदाज़ा इस तौर पे कर सकते हैं कि पिछले 3.5 महीनों से हम और आप लॉकडाउन का शिकार है या लॉकडाउन से गुज़र रहे हैं, और हमें एहसास हो रहा है कि कैद क्या चीज़ होती है। जबकि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, हमारे बीवी बच्चे हमारे पास हैं, हम घरों में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ अच्छी खा रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो एक छोटा सा एहसास कैद का हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, जो लोग 14 सालों से बिना किसी जुर्म के जेलों के अंदर कैद है, उनके शब व रोज़ किस तरह से गुज़र रहे होंगे। आज ही के दिन 14 साल पहले जो हादसा हुआ था मुंबई में, जिसके नतीजे में ATS ने हम 13 लोगों को गिरफ़्तार किया था। तो मेरा जो टॉपिक है वो है 14 ईयर्स ऑफ हॉरर इन द नेम ऑफ टेरर। तो मैं बहुत ही मुख्तसर इस केस की चंद बातें आपके सामने रखूँगा। आप जानते हैं कि क्रिमिनल केसेस के अंदर बहुत सारे गोल्डन रूल अपनाए जाते हैं। एक गोल्डन रूल होता है बेनिफिट ऑफ डाउट का, यानी जब किसी केस के अंदर डाउट क्रिएट हो जाए, डाउट पैदा हो जाए, तो उसका सीधा फ़ायदा एक्यूज़ को दिया जाता है और एक्यूज़ को सज़ा नहीं दी जाती बल्कि रिलीज़ किया जाता है। इस केस में इंडियन मुजाहिदीन नाम का एक थ्योरी जो बॉम्बे पुलिस ने पेश की, और बॉम्बे पुलिस के साथ साथ मुल्क की 7 स्टेट ने इस थ्योरी को पेश किया कि ये बम ब्लास्ट इन 12 लोगों ने नहीं किया है बल्कि इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने किया है। ये डाउट क्रिएट होने के बावजूद भी बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज़ को नहीं दिया गया और उनको कन्विक्शन दिया गया। क्रिमिनल केसेस में दूसरा जो एक प्रिंसिपल है वो है टू थियरी प्रिंसिपल, यानी अगर किसी केस में 2 थियरी कोर्ट के सामने अगर आती है, एक थियरी इस बात की गवाही देती है कि मुलजिम ही मुजरिम है और दूसरी थियरी इस बात की गवाही देती है कि मुलजिम मुजरिम नहीं है, तो कोर्ट को उस थियरी को अपनाना चाहिए जो मुलजिम के फेवर में है और उसको अपनाते हुए मुलजिम को बरी करना चाहिए। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट पेश किए जा सकते हैं, लेकिन इस थियरी को भी नहीं अपनाया गया और इन मुलजिमीन को मुलजिम बनाकर मुजरिमीन को सज़ा दी गई। हमने पिछले 14 सालों में इस केस को झूठा साबित करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। उसकी एक मिसाल है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI। हमने बहुत सारी RTI पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए हासिल की इंफॉर्मेशन और कोर्ट में जमा की, जिससे हमने हमारे इनोसेंस को पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने वो सारी RTI इंफॉर्मेशन मानने से इनकार कर दिया। पहले तो अदालत ने ये बावर किया कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को एग्ज़िबिट किया गया है, इनको एग्ज़िबिट नंबर मिला है, उसको पढ़ा जा सकता है, उसको रिफ़र किया जा सकता है। लेकिन जब जजमेंट का टाइम आया तो जज ने उसको पढ़ने से, रिफ़र करने से और रिलाय करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जज का ये कहना था कि उन RTI इंफॉर्मेशन को साबित करने के लिए ऑफिसर्स को कोर्ट में नहीं बुलाया गया। हालांकि हम उन ऑफिसर्स को बुलाने के लिए तैयार थे, और अगर ये जो 400 या 500 ऑफिसर अगर हम बुलाते, इसके लिए अगर मज़ीद 1 साल का वक्त दरकार होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर रहे थे। लेकिन जज ने हमको इस बात का मौका नहीं दिया और वो सारी RTI इंफॉर्मेशन मानने से इनकार कर दिया। दूसरा, जो इस केस के अंदर आई विटनेसेस है वो बहुत ही स्ट्रेंज आई विटनेसेस है, जो बम ब्लास्ट के महीनों बाद, 2 महीनों बाद सामने आते हैं और वो दावा करते हैं कि हमने ट्रेन में या टैक्सी में कुछ सस्पिशियस लोगों को काले बैग के साथ देखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इस सिलसिले में पेश किए जा सकते हैं कि अगर 2 महीने के बाद कोई आई विटनेस अगर आता है और अपने पास 2 महीने तक एक अहम इंफॉर्मेशन रखता है और डिस्क्लोज़ नहीं करता पुलिस को, तो ऐसे आई विटनेस को बहुत शक की निगाह से देख करके उसकी गवाही को रिलाय नहीं करना चाहिए। लेकिन इस केस में उन आई विटनेसेस को गवाही को रिलाय करके जो है सज़ा दी गई। आप ये भी जानते हैं कि इस केस में पहले IPC की धाराएं लगाई गई और चंद महीनों के बाद MCOC अप्लाई किया गया। MCOC लगाने का मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से इन एक्यूज़ के साथ कन्फेशंस ज़बरदस्ती रिकॉर्ड किया जाए, और कन्फेशन रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने उन कन्फेशन को सही मानते हुए उस पर सज़ाएं दी है। वो सारी चीज़ें
आपके सामने बार बार आती रही है कि वो किस तरह से कन्फेशन टॉर्चर करके लिया गया है, उसमें किस तरह से बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ है, बहुत सी उसमें ख़ताएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद उन कन्फेशन को मान करके जज ने जो है सज़ा दी है। फिर आप ये भी जानते हैं कि इस केस में अप्रूवर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, लालच दी गई, ऑफ़र दिया गया, डराया धमकाया गया, और कई एक्यूज़ के साथ जेल में, पुलिस कस्टडी में और उनके घर वालों को किसी तरह से प्रेशराइज़ किया गया कि वे अप्रूवर बन जाए, ताकि ये केस जो है एक लॉजिकल एंड को पहुँचे, इसमें कन्विक्शन लग जाए अप्रूवर के साथ। लेकिन किसी ने भी अप्रूवर बनने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। फिर आप जानते हैं कि जब हम लोग जेल में थे तो हम लोगों ने हर साल इस केस की एक रिपोर्ट हम लोग बनाते थे अंदर बैठ करके, क्योंकि हमारे अंदर जाने के बाद हमारी बेगुनाही को साबित करने के लिए या बेगुनाही को बताने के लिए हमारे पास सिर्फ़ एक ज़रिया था, या तो ये कि हम कुछ इस तरह से लेटर्स लिख करके या रिपोर्ट बना करके बाहर पहुंचाते मीडिया पर्सन्स तक, और वो छपता और लोग उसको जानते। हमने एडवोकेट शाहिद आज़मी को जब 1 साल हो गए 2007 में जेल में जाने के बाद, तो हमने एक रिपोर्ट बनाई 2008 में, 2009 में, इस तरह हमने 3 साल कंटिन्यू रिपोर्ट बनाई और एडवोकेट शाहिद आज़मी को दी। एडवोकेट शाहिद आज़मी ने मीडिया पर्सन्स को और एक्टिविस्ट को वो सप्लाई की, और फिर वो जब कि अखबारों में छपी तब जा कर के बहुत सी क्लियरिटी हुई और बहुत से लोगों ने समझा कि ये केस जो है बोगस है और इनको फंसाया गया है। 2015 में 9 साल ट्रायल चलने के बाद इस केस में कन्विक्शन लग गया। 5 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई है और 7 लोगों को लाइफ की सज़ा दी गई। और ये कन्विक्शन जो लगा है, ये कन्विक्शन, मेरा कहना ये है कि रॉन्गफुल कन्विक्शन है। पूरी दुनिया के अंदर जो रॉन्गफुल कन्विक्शन है उसके जो रीज़न्स है वो 8 रीज़न्स गिनाए जाते हैं। अगर आप उन 8 रीज़न्स को देखेंगे तो वो 8 रीज़न्स इस केस में भी है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है पुलिस मिसकंडक्ट, यानी पुलिस जो है इनकॉम्पिटेंट होती है, या उसकी जो कार्रवाई है या उसकी तफ्तीश है वो गलत रुख पर होती है, जानते बूझते या अनजाने। तो इस तरह से गलत लोगों को पकड़ के उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है और सज़ा दी जाती है। इस केस में यही हुआ है। दूसरा जो रीज़न है वो है कन्फेशन अंडर ड्यूरेस, यानी मार कर, ज़बरदस्ती, दबाव में डालकर कन्फेशन स्टेटमेंट पर सिग्नेचर ली जाती है, वो भी इस केस में हुआ है। तीसरा जो रीज़न है इनएफेक्टिव असिस्टेंट ऑफ काउंसिल, यानी एक तरफ तो जो प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है, प्रोसिक्यूटर है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हाईली क्वालिफाइड है, बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार है और उसके पीछे एक बड़ी टीम है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग एक्यूज़ है उनके पास जो है अच्छे लॉयर्स नहीं हैं, उनको लड़ने के लिए वकील नहीं है तजुर्बेकार। और आप जानते हैं कि इस केस के अंदर बहुत ही गरीब लोग अरेस्ट किए गए थे जिनके पास लॉयर नहीं था। उन्होंने जमीयत उलमा से अपील की और फिर जमीयत उलमा ने उनको लॉयर्स दिए जिन्होंने इनका केस लड़ा। चौथा जो रीज़न है वो मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन, यानी गलत अपराधी को या गलत आरोपी को जो है शनाख्त करना। इस केस में भी पता नहीं किन लोगों ने जो है बम प्लांट किया, लेकिन पुलिस ने ऐसे लोगों को खड़ा किया कि जिन्होंने हमको आइडेंटिफाई किया है, तो गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो है कन्विक्शन लगा है। पांचवा जो रीज़न है फॉल्स एक्यूजेशन, गलत लोगों को मुजरिम बनाना, मुलजिम बनाना। इस केस के अंदर भी गलत लोगों को मुलजिम बनाया गया। छठा रीज़न है फॉरेंसिक एरर, यानी ऐसी गलत रिपोर्टें देना फॉरेंसिक जिसकी वजह से गलत जो है मामला जो है सामने आ जाए। सातवां जो रीज़न है रेशियल डिस्पैरिटी, यानी ख़ास तौर से किसी एक रेस, किसी एक रिलीजन, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना, निशाना बनाना। और इस देश में आप जानते हैं कि एक मुस्लिम कम्युनिटी को टेररिज्म के नाम पर निशाना बनाया गया और इस्लामिक टेररिज्म की इस्तिलाह लाई गई और जिहाद की एक इस्तिलाह लाई गई जिसको टेररिज्म से जोड़ा गया, और ये कहा गया कि बस टेररिज्म या टेररिस्ट सिर्फ मुसलमान होते हैं। तो एक ख़ास एक जहनी के साथ, एक जहनी उपज के साथ ये बात की गई कि सिर्फ मुसलमान दहशतगर्द होते हैं और सिर्फ मुसलमानों को पकड़ा जाना चाहिए, तो उनको निशाना बनाया गया। और आठवां जो रीज़न है सिस्टम इशू, यानी जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा फेलियर ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हैं
और इतने बर्डन ऑफ केसेस होने की वजह से लोग उसमें जो है ज़्यादा जज टाइम नहीं दे पाते, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है बहुत से रॉन्गफुल कन्विक्शन हो रहे हैं। तो मैंने आपके सामने 8 रीज़न गिनवाए जो रॉन्गफुल कन्विक्शन के सबब बनते हैं। हमारे केस में ये सारी चीज़ें हुई है। अब मैं आपको बहुत ही क्विकली कैंपेन के बारे में बता दूं। आप जानते हैं 2015 में मैं रिहा होकर बाहर आया और मुझे इस बात का एहसास था कि ये केस जो है गलत सज़ा लगी है, इसलिए हम लोगों ने कोर्ट के बाहर एक कैंपेन शुरू की और 2015 से लेके अब तक हम कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इसमें गलत हुआ है और इसमें इंसाफ होना चाहिए। मैं आखिर में जो कैंपेन की कामयाबी कैसे हो सकती है या इस पूरे केस के अंदर इंसाफ कैसे फराहम हो सकता है, हाई कोर्ट के अंदर मैटर है और अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि मैटर बोर्ड पर आए और वहाँ पे अपील शुरू हो, वो अपने वक्त पर शुरू होगी। लेकिन जो कैंपेन है उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फ्रांस की। ये फ्रांस आर्मी के अंदर एक कैप्टन था जिसका नाम था अल्फ्रेड ड्राइफस और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने जासूसी की है और मुल्क से गद्दारी की है और उसने जर्मन्स को कुछ सीक्रेट्स फराहम किए हैं फ्रांस के। चुनांचा जो ड्रेफिस है उस पर केस चला, कोर्ट मार्शल हुआ और उसको लाइफ की सज़ा दे करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद जो फ्रांस की आर्मी इंटेलिजेंस यूनिट है उसका चीफ जॉर्जस पिक्वाट बनाया गया 1896 में और उसने तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद उसने ये पाया कि जो अल्फ्रेड ड्रेफिस है वो बेगुनाह है, उसको फंसाया गया है, गलत सज़ा दी गई है। और बल्कि एक दूसरा जो कैप्टन है जिसका नाम है फर्डिनेंड वॉल्सिन एस्टरहैज़ी, वो जो है गद्दार है और उसने जो है कुछ दस्तावेज़, खुफिया दस्तावेज़ जो है दूसरे मुल्क को पास की है। लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया, जॉर्जेस की बात को, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसको बाद में क़ैद कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़े ऑथर है जिनका नाम है एमिल ज़ोला। जब उनको ये पता चला कि इसको गलत केस में फंसाया गया है ड्राइफस को, तो उसने एक लेटर लिखा फ्रांस के प्रेसिडेंट के नाम और फ्रांस के प्रेसिडेंट के नाम लिखने के बाद उसने अपील की, ओपन लेटर लिखा और वो लेटर अंग्रेज़ी अखबार में छपा और उसने अपील की कि इस तरह से ये गलत जो है कार्रवाई हो रही है आर्मी के अंदर और ये जो सज़ा लगी है ड्राइफस को, ये गलत सज़ा लगी है। चुनांचा उसके बाद बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई, उस ऑथर को भी, जो उसके ऑथर के ख़िलाफ़ भी केस बना। बिलाखिर वहाँ के प्रेसिडेंट ने उसकी सज़ा को माफ़ किया और आर्मी में ड्राइफस को वापस लिया गया। तो एक मुहिम उस वक्त चलाई गई थी उसके बेगुनाही के लिए, उसकी रिहाई के लिए। तो हम और आप भी जो है इन 12 लोगों की बेगुनाही के लिए मुहिम चला सकते हैं, मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। महाराष्ट्र के एक एमएलए है अबू आसिम आज़मी, वो बहुत ज़्यादा हसास है इस केस के सिलसिले में। हमेशा वो पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है और केस का क्या क्या बन रहा है। तो अगर हमने उनके लिए अगर उन तक ये बात हम सब लोग अगर पहुंचाते हैं एक साथ, उनको फ़ोन कॉल कीजिए, उनको ईमेल कीजिए, उनको व्हाट्सअप कीजिए और ये एक इशू बनाइए, चूँकि आप जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर अभी हुकूमत में उनका भी कुछ योगदान है। तो अगर उनको हज़ारों और सैकड़ों हज़ारों की तादाद में फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स वगैरह जाते हैं और एक मासेस, एक हिस्सा बनता है, एक पब्लिक मासेस या पब्लिक ओपिनियन एक बड़ी पैमाने पर अगर बनती है, तो वो असम्बली में इस केस को उठा सकते हैं और इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि चेंजेस आ सकता है, रिलीफ मिल सकता है। तो सामईन इकराम, ये जो 14 साल से ये लोग बेगुनाह होते हुए कैद है और जेल के अंदर एक एक दिन बहुत मुश्किल से गुजार रहे हैं। मेरे पास ख़त आते हैं उनके, तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये बेचारे आज भी कैद में हैं। तो हम लोग जो भी इनके लिए कर सकते हैं, इनकी रिहाई के लिए हम लोगों को करना चाहिए और साथ ही साथ दुआ भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और जितने बेगुनाह हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।
July 11th, 2006, 7 powerful blasts on 7 trains. वाहिद शेख को जब अरेस्ट किया तो इट वाज सेड कि वाहिद शेख्स फ़ोन वाज यूज्ड फॉर कॉन्टैक्टिंग लश्कर तैयबा इन पाकिस्तान। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ज़रूरी है और जिनके जवाब शायद पुलिस देना नहीं चाहती या उनके पास नहीं है। ATS Mumbai basically put out this whole narrative that we are doing a very high-tech, completely infallible investigation. Every jargon that they used, CDR, narco, etc., forensic, well, when they submitted the charge sheet, all of that was absent. उसका अकेले छूट जाना और बाकी लोगों को कन्विक्शन होना, उसको एक और सजा लग रही है। यहाँ से मेरे शौहर को लेके गए हम लोग, सब सामान वामान देके, घर देके, पूरी घर की तलाशी लिए और साथ में उनको लेके चले गए बम्बई की ट्रेन। अरे बहुत मारे, मेरे शौहर को तो पूरा नंगा करके सब बच्चों के सामने खड़ा कर दिए, पूरा तन पे एक कपड़ा भी नहीं रखे उनके। और जितने बच्चे पकड़े गए थे ना उनके सामने these terrorism, see, danger to nation, national security, these issues are put in while arguing, and then one is forced to give up the usual objective attitude and look at these matters differently, which may result in gross injustice in many cases. कभी भी हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी। कितना ही बुरा पीरियड आ जाए, कितने ही बुरे दिन आ जाए, लेकिन अगर आप हक पर है, आप सच्चाई पर है, आप सच बात पर है, तो आपको अपने कॉज के लिए डटे रहना है।